हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सॉइल मैकेनिक्स। ये गेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ किस तरीके से आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ सर्टेन सॉइल हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: GS इक्वल्स टू 2.71, N इक्वल्स टू 40% एंड W इक्वल्स टू 20%. द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट परसेंटेज इज डैश। हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है, राइट? सो गिवन है हमारे पास G 2.71, पोरोसिटी इज 40% और 0.4, वाटर कंटेंट इज 20% और 0.2. ओके, सो हमको पता है N इक्वल्स टू E बाय 1 प्लस E होता है, राइट? सो फ्रॉम दिस E की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. E विल कम आउट टू बी 0.67, राइट? सो ऑल्सो वी नो द रिलेशन WG इक्वल्स टू ESR. So SR will be equals to WG by E. So W is 0.2, G is 2.71 and E is 0.67. So okay, so substituting the values you will get 81.3%. Okay, so we have to give the value in the nearest percentage. So SR will be equals to 81%. So 81 is the correct answer, right? This is fill in the blank question. Now question number 2. This is asked in 2005. A saturated soil mass has a total density 22 kilonewton per meter cube and a water content of 10%. The bulk density and dry density of the soil are. So bulk density and dry density. देखो bulk density क्या होती है? Saturated soil mass की bulk density और total density क्या होगी? सेम हो जाएगी. Bulk density will be equals to 22 kilonewton per meter cube. Right? For a saturated soil mass, bulk density and total density will be same. Water content is given 10%, which is 0.1. हमको dry density बताना है. So dry density का formula क्या होता है? Gamma T upon 1 plus W. This will come out to be 22 upon 1 plus 0.1. This will equals to 20 kilonewton per meter cube. So correct answer is option number B. Question number 3. This is asked in 2004. The ratio of a saturated unit weight to dry unit weight of a soil is 1.25. If the specific gravity of solids is 2.65, the void ratio of the soil is. हमको void ratio बताना है, ठीक? हमको रेशियो गिवन है सैचुरेटेड डेंसिटी का टू ड्राई डेंसिटी का इज 1.25. ओके, सो फ्रॉम द फॉर्मूला सैचुरेटेड डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये हो जाता है G प्लस ES बाय 1 प्लस E divided by G gamma W upon 1 plus E, it is equals to 1.25. so this will be equals to cancel हो जाएगा. ये हो जाएगा G plus ES by G equals to 1.25. so substitute कर देंगे वैल्यूज को. GS is 2.65 plus E for a saturated soil. SR is equals to 1. So S will be equals to 1, 2.65. This will be equals to 1.25. Okay, you will get the value of E as 0.663. So option B is the correct answer, right? Now question number 4. This is asked in 2002. The void ratio as the densest, loosest and the natural state of a sand deposit are 0.2, 0.6 and 0.4 respectively. The relative density of the deposit is A 100%, B 75%, C 50%, D 25%. हमको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, ठीक? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E max माइनस E बाय E max माइनस E minimum, राइट? Void ratio at densest state and void ratio as loosest state. Okay, so 0.6 minus natural is 0.4. D max is 0.6 minus E minimum. E minimum is 0.2. So you will get this value as 0.5 or 50%. So option C is the correct answer. Now question number 5. This is asked in 2000. A soil sample has a void ratio of 0.5 and its porosity will be close to A 50%, B 66%, C 100%, D 33%. void ratio हमारे को पता है 0.5 है, ठीक? पोरोसिटी N बतानी है हमारे को, तो N का फॉर्मूला क्या होता है? E upon 1 plus E.
सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें हम वैल्यूज को. वैल्यूज 0.5 बाय 1 प्लस 0.5, दिस विल कम आउट टू बी 0.33 और 33%. So the correct answer is option number D. Question number 6. Principle involved in the relationship between submerged unit weight and saturated weight of a soil is based on A. Equilibrium of floating bodies, B. Archimedes principle, C. Stokes law, D. Darcy's law. So the correct answer is option number B. Archimedes principle. जो सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड का जो रिलेशन होता है, हमको पता है सबमर्ज्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा डब्ल्यू. ये किसके बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे. ठीक, डायरेक्ट एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का. क्यों? बिकॉज जो भी वेट सब्सटेंस का होता है वो किसके इक्वल होता है? जितना पानी वो वाटर डिस्प्लेस करता है. सो यहाँ पे भी उसका मीनिंग वही है, सबमर्ज्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर. Apparent loss of weight of substance when weight in water, जब उसको वाटर में वे करते हैं वो इक्वल होता है weight of water displaced by it. So this is based on Archimedes principle. Now question number 7. This is asked in 1998. If soil is dried beyond its shrinkage limit, it will show A. large volume change, B. moderate volume change, C. low volume change, D. no volume change. सो इसका करेक्ट आंसर है नो वॉल्यूम चेंज. सो हमको प्लास्टिसिटी का पता है. ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट, ये सेमी सॉलिड स्टेट, ये प्लास्टिक स्टेट, ये लिक्विड स्टेट. ठीक, ये वाटर कंटेंट है श्रिंकेज लिमिट, ये वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, ये वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट्स. ठीक है, व्हेन वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो श्रिंकेज लिमिट. ठीक, जब वाटर कंटेंट को हम रिड्यूस करते हैं इस श्रिंकेज लिमिट से कम, तब क्या होता है? जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने क्लोजली स्पेस्ड रहते हैं कि वॉल्यूम रिडक्शन नहीं हो पाता, और जो वॉइड्स होते हैं स्टार्ट ऑक्यूपाइड बाय एयर. ठीक, सो इसीलिए कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाता है. ठीक, और वी कैन से दैट श्रिंकेज लिमिट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज सैचुरेटेड. राइट, सो अगर सॉइल को हम लोग ड्राई करेंगे बियॉन्ड दिस श्रिंकेज लिमिट, सो देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 8. Aeolian soil are A. residual soil, B. wind deposit, C. gravity deposit, D. water deposits. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंड डिपॉजिट्स. एयरलियन सॉइल्स जो होते हैं वो विंड डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल इज डैश. सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ग्रुप इंडेक्स की? 20. ओके. Now question number 10. A soil having particles of nearly the same size is known as A. well graded, B. uniformly graded, C. poorly graded, D. gap graded. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. देखो, जब पार्टिकल्स सेम साइज के हैं सॉइल्स में तो वो होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. ठीक, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं. ठीक, वेल ग्रेडेड में क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ साइजेस होते हैं और गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइजेस ऑफ पार्टिकल्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है. मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनका गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइजेस के पार्टिकल्स रहते हैं, वो होता है वेल ग्रेडेड. पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है? डज नॉट हैव गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पुअरली ग्रेडेड में हर साइज के पार्टिकल्स का गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. ठीक, और गैप ग्रेडेड में क्या होता है? या तो एक्सेस होता है या तो डिफिशियंसी होती है सर्टेन पार्टिकल साइज की, जिसमें वन पार्टिकल साइज जो होता है एटलीस्ट वन पार्टिकल साइज क्या होता है? मिसिंग होता है. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. This is asked in 2015. If the water content of a fully saturated soil mass is 100%, the void ratio of the sample is A. less than specific gravity of soil, B. equal to the specific gravity of soil, C. greater than specific gravity of soil, D. independent of specific gravity of soil. ठीक, सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है. वाटर कंटेंट ऑफ अ फुली सैचुरेटेड सॉइल. fully saturated means degree of saturation is 100%. वाटर कंटेंट 100 है, सॉइल क्या है? फुली सैचुरेटेड है. हमको वॉइड रेशियो बताना है. सो हमको रिलेशन पता है WG इक्वल्स टू ESR होता है. ठीक,
So W is 100%, right? Or you can say that it is 1. SR is also 1. Okay, so यहाँ से water content is 1. Specific gravity G, E into degree of saturation is 1. So G is equal, specific gravity is equals to the void ratio of the sample. ठीक है, और we can say that the void ratio of the sample is equal to the specific gravity of soil. So the correct answer is option number B. Now question number 12. A soil mass has coefficient of horizontal and vertical permeability as 9 into 10 raised to power minus 7 centimeter per second and 4 into 10 raised to power minus 7 centimeter per second respectively. The transformed coefficient of permeability of an equivalent isotropic soil mass is. सो हमको ट्रांसफॉर्म्ड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा है, ठीक है. सो वो किसके इक्वल होता है, के डैश जो होता है वो रूट ओवर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी का रूट ओवर होता है, ठीक. सो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कितनी दी हुई है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. वर्टिकल कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. सो रूट 36 मीन्स 6. सो इसका करेक्ट आंसर है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Okay, so the option number D is the correct answer. Question number 13. According to Darcy's law for flow through porous media, the velocity is proportional to A. effective stress, B. hydraulic gradient, C. cohesion, D. stability number. ठीक, जो वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, हमको पता है इन वन डायमेंशनल फ्लो जो डिस्चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, के आई ए. के इज अ परमेबिलिटी, ए इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के इनटू आई. सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ओके, now question number 14. This is asked in 2016. The relationship between the specific gravity of sand G and the hydraulic gradient I to initiate quick condition in the sand layer having porosity of 30% is. So हमको relation बताना है, ठीक. For a quick sand condition हमको पता है I equals to क्या होता है, G minus 1 upon 1 plus E, ठीक. For quick sand condition to occur क्या होना चाहिए, ICR equals to I होना चाहिए, right. So G minus 1 will be equals to 1 plus E. 1 plus E. E की वैल्यू पोरोसिटी कितनी दी हुई है, 30% दी हुई है. सो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, E will come out to be, E का फॉर्मूला क्या होता है, N 1 माइनस N, N अपॉन 1 माइनस N. सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.3 बाय 0.7 ये हो जाएगा, 3 बाय 7 वी कैन से दैट. ओके, सो 1 प्लस E, 1 प्लस 3 बाय 7. सो यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी, G विल कम आउट टू बी 1.43 I plus 1. So the correct answer is option number C. Question number 15. This is asked in 2015. Which one of the following statement are true for relation between discharge velocity and seepage velocity? A. Seepage velocity is always smaller than discharge velocity. B. Seepage velocity can never be smaller than discharge velocity. C. Seepage velocity is equal to the discharge velocity. D. No relation between seepage velocity and discharge velocity can be established. हमको रिलेशन बताना है डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी का, ठीक. तो हमको पता है सीपेज वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, V बाई एन के इक्वल होती है, राइट. वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, और हमको क्या पता है पोरोसिटी N जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक. और जो पोरोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होती है. सो डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 है तो Vs जो है वो V से हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक. हेंस वी कैन से दैट Vs इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू V, ठीक. सो सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी. सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. Question number 16. This is asked in 1991. The volume of water that can be released by an gravitational effects from a unit volume of an aquifer is its A. specific storage, B. specific yield, C. specific capacity, D. specific porosity. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, स्पेसिफिक यील्ड. स्पेसिफिक यील्ड मतलब ये होता है जो वाटर को हम रिलीज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट से एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर से, वो होता है स्पेसिफिक यील्ड, ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 17.
द ग्राउंड कंडीशन एट अ साइट्स आर शोन इन फिगर। ये ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक, एक पॉइंट पी है 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल में है। वाटर कंटेंट 20% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7। वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर ए, इसका 2 क्वेश्चंस है ए और बी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज। सो सैचुरेटेड यूनिट वेट, सो हमको फॉर्मूला पता है सैचुरेटेड डेंसिटी का क्या होता है। सैचुरेटेड डेंसिटी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई, ठीक। सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई की वैल्यू को भी, गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी बाय एस हो जाएगा ये, ठीक। सैचुरेटेड डेंसिटी के लिए S will be equals to 1, ठीक। नाउ हियर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 10, G की वैल्यू कितनी की हुई है 2.7 प्लस वाटर कंटेंट इज 20% और 0.2 इंटू 2.7 बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। सो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी सैचुरेटेड डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 21.039 और 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बी, द टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पे जो पॉइंट पी दिया हुआ है, गिवन पॉइंट पी, यहाँ पे हमारे को टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है, ठीक। तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू एच हो जाएगा, ठीक। पोर वाटर प्रेशर किसके इक्वल होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, पानी की वजह से जो प्रेशर होता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक। सो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट पी विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड इंटू एच। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 21 इंटू 5, this will be 105 kilo Newton per meter square, right? Pore water pressure at point P will be equals to gamma W into H. Gamma W is unit weight of water, given 10 into 5. This will be equals to 50 kilo Newton per meter square, right? Effective stress. So effective stress क्या हो जाएगा at P, total stress minus pore water pressure, so 105 minus 50, this will be equals to 55 kilonewton per meter square, ठीक। so correct answer is option number C। क्वेश्चन नंबर 18 2007 में ये पूछा गया है, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, बी कंसोलिडेशन टेस्ट, सी पक्नोमीटर टेस्ट, डी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। लिस्ट 2 क्या दिया हुआ है, पाइल फाउंडेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लेई सॉइल, सैंड, ठीक। तो हमको पता है कांस्टेंट हेड जो परमेबिलिटी टेस्ट का होता है वो उन सॉइल्स के लिए जिनकी परमेबिलिटी हाई होती है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉइल हैविंग हाई परमेबिलिटी, एग्जांपल सैंड। सो ए का 4। कंसोलिडेशन टेस्ट किस लिए यूज होता है, फॉर क्लेई सॉइल्स के लिए यूज होता है, राइट। एंड पिक्नोमीटर टेस्ट किस लिए यूज होता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट। सो सी का आंसर 2 है, ठीक। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ये क्या है, किससे एसोसिएटेड है, पाइल फाउंडेशन से एसोसिएटेड है, राइट। सो 4 का 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, this is asked in 2005 in a constant head permeameter with cross sectional area of 10 centimeter square when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.5. The amount of water collected in 60 seconds is 600 cc. The permeability of the soil is. So हमको permeability बतानी है soil की, ठीक। So discharge क्या हो जाएगा, जो वाटर कलेक्टेड होता है 60 सेकेंड में वो क्या है, 600 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। सो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, 600 बाय 60 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। नाउ हमको के फाइंड करना है, ठीक। परमेबिलिटी
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या गिवन है, 0.5 गिवन है, राइट। हमको परमेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। सो वी नो द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू KIA होता है, राइट। Q कितना आ गया 10, K फाइंड करना है, KI इज 0.5 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन, it is given area of cross section is 10 centimeter square, okay. So from here K will be come out to be 2 centimeter per second. So the correct answer is option number D, 2 centimeters per second. Now question number 20. The number of flow channels and head drops is 4 and 12 respectively. If the difference in the upstream and downstream water level is 3 meter, what is the discharge per meter width of a sheet pile? What if K equals to 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये फ्लोनेट का क्वेश्चन है, राइट। सो हमको हेड डिफरेंस दिया हुआ है, क्या है 3 मीटर। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स NF क्या है 4, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स क्या है 12 है, राइट। डिस्चार्ज फाइंड करना है पर मीटर विड्थ ऑफ शीट पाइल, परमेबिलिटी कितनी गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो हमको फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू KHL NF/ND होता है, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.1 इंटू 3 इंटू 4/12, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरे जो फॉर्मूले हैं जियोटेक के एक वीडियो में कवर किए हैं, आप उसको मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।